starting the lecture with this particular slide. What is international trade? There is a definition of Anatole Mart. International trade is a trade between nations. According to Wasserman and Hartman, international trade consists of transaction between residents of different countries. These are the two definitions given by the economist who deals with the international trade economy. To explain these definitions, we could conclude international trade into the following things. International trade is the exchange of capital, goods, and services across international borders or territories, which could involve the activities of the government and individual. So by this, we could understand that international trade is the exchange of capital, goods, and services across the international borders or territories, which could involve the activities of the government and individual. गवर्नमेंट के भी कुछ काम होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं और किसी इंडिविजुअल का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है. सो इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज. Moving forward towards the, I think it is not a very difficult task to understand what is international trade. I'm moving towards the next slide. What is the importance of international trade? What is the importance? It boosts economic development. It enhances competitiveness, export diversification, encourages innovation, expand business opportunities, expand choice, improvement of quality, cutting government spending, strength ties between the nations. Boost economic development, I don't think that there is any need to explain this, that the international trade boosts the economy of a country. Enhance competitiveness, it is so easy that the market will not be saturated on monopoly. The competitive market will be come into existence when international trade comes. कोई चीज कोई आदमी 10 कोई कंट्री 10 रुपए में बना रही है, कोई 15 में बना रही है, तो वो 15 में जो बेच रही थी वो अब 10 में बेचने की कोशिश करेगी. तो इट एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस. एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट जो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग चीजों में होता है, उससे अलग अलग चीजें होती हैं. इनकरेजेस इनोवेशंस, नई चीजें इजाद होती हैं, नई चीजें बनती हैं. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड होती हैं, इंसान की चॉइसेस एक्सपेंड होती हैं. पहले सिर्फ जिसे कहें कि ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे अमेज़न था, अब इवन इन दैट वी हैव लॉट ऑफ चॉइसेस. तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की चॉइसेस भी बढ़ती है. क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, हर आदमी बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा. गवर्नमेंट खुद अपने यहाँ चीजों को न जिसे कहें प्रोड्यूस करा के गवर्नमेंट लेवल पे इंपोर्ट करती है, तो कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ये जो इम्पोर्टेंस है, इन्हीं के बेसिस पे थ्योरीज होती हैं. वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं के बेसिस पे होती हैं. स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द नेशंस. आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन इन दिस. इफ देयर इज, I'll ask you afterwards. इसको समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की. These are the point कि it boosts economic development of the nation as well as the global world, enhance competitiveness around the globe, export diversification, encourages innovation, expand business opportunities, expand choice, improvement of quality, cutting government spending, strengthen the ties between the nation. These are the importance of international trade. Now coming on to the difference and the similarities between internal trade and international trade. So first we are discussing with the differences. All there is written difference and similarities. So first we are dealing with the difference of international trade from internal trade. This particular
this particular column, first column is of internal trade and the second column is of international trade. Currency differences, domestic trade is carried out through uniform currency. जो internal trade होता है उसमें एक ही currency use होती है, यहाँ पे अलग currencies use होती हैं. Currencies are different. A peculiar feature of international trade is the use of different currencies by different countries that participate in exchange, e.g. Indian rupee, Japanese yen, British pound, sterling, American dollar, etc. लेकिन इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में ग्लोबल विलेज मान रहे हैं तो एक ही करेंसी यूज हो, लेकिन फिर भी अभी तक डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसीज यूज करती हैं. ये जो मोस्ट पावरफुल करेंसी होती है उस वक्त की, जो सारी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, उसी में ट्रांजैक्शन होते हैं. जैसे कि नाउअडेज या तो यूरोज में ट्रांजैक्शन होता है या डॉलर में होता है. रिसोर्सेज मोबिलिटी, रिसोर्स की मोबिलिटी, अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स. देखिए फैक्टर्स ऑफ ट्रेड क्या क्या है, कैपिटल है, लेबर है, और जिसे कहें रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल है. ये रिसोर्सेज इंटरनल ट्रेड में एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से चली जाती हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा फर्क नहीं आता. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क नहीं आता. जो चीज अगर कश्मीर में बन रही है वही यूपी में बनना यूपी गवर्नमेंट बनवाने लगे या जिसे कहें यूपी में बनाए जाने लगे, तो फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, ये चीज विद इन कंट्री आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता जो उसकी कॉस्ट में है. लेकिन फैक्टर्स आर इमूवेबल बिटवीन द कंट्रीज. लेबर का फैक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज का फैक्टर है, तो ये जो है फैक्टर, इसकी वजह से इसमें कॉस्ट में फर्क आ जाता है. कॉस्ट में फर्क आ जाता है किसी भी चीज की. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, पॉलिसी in respect of the domestic trade, the policies are uniform throughout the nation. Normally सब पॉलिसीज गवर्नमेंट की पूरी कंट्री में एक सी होती हैं, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं. ये तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस हो, कि एक प्रोडक्ट के लिए पॉलिसी अलग है, दूसरे के लिए अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर सेम प्रोडक्ट है तो पॉलिसीज सेम होती हैं. इंटरनेशनल ट्रेड में ये चीज डिफर करती है. वहां पे हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इसका जैसे कहें कॉस्ट में भी फर्क आता है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी फर्क आता है, सारी चीजें होती हैं. एंडोवमेंट डिफरेंस, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड दैट सम कंट्रीज हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज while the other in others human resources may be better, both quantitatively and also qualitatively. These differences non-existence in the context of domestic trade. अगर मुरादाबाद के कारीगर कॉपर में अच्छा कर रहे हैं तो उन कारीगरों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, वहां काम कराया जा सकता है. मुरादाबाद में अगर कॉपर पैदा हो रहा है या बन रहा है तो वो यहाँ से दिल्ली भी लेके जाया जा सकता है. लेकिन ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एंडोवमेंट जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये आसानी से ट्रांसफर नहीं होते हैं. Geographical and other differences of the country does not matter in the internal trade. It affects a lot in international trade. Geography कैसी है? ब्लॉक लैंड है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं पॉसिबल है. ब्लॉक लैंड विद इन जिसे कहें नेशन नहीं हो सकता. तो मेरी बात को समझिए कि ज्योग्राफिकल एरिया जो है किसी भी मुल्क का, उसके इंटरनल ट्रेड पे ज्यादा फर्क नहीं डालता है. पहाड़ पे भी सड़कें बनी हुई हैं, समुद्र के पार पुल है, बॉम्बे का पुल बना है, समुद्र को क्रॉस करके बना है, जिसने ईस्ट और वेस्ट मुंबई को जोड़ा है, तो इतना कोई फर्क नहीं आता. लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस या जो पॉलिटिकल कंडीशंस जो किसी कंट्री की हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. Different markets, it does not affect internal trade. Different nations have different market policies, selling export and buying imports. These depends upon the political ideologies of economic system. मोनोपोली है तो वो पूरी कंट्री में मोनोपोली होगी, मोनोपोलिस्टिक है पूरी कंट्री में मोनोपोलिस्टिक होगा. इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता. लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में बात करते हैं कि एक कंट्री जिसमें मोनोपोली है वो उससे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है जहां पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है. मेरे ख्याल से इसके बाद सिमिलैरिटीज का है.
similarities यहाँ है. I am stopping the share screen and want to ask you if anyone have any problem. Similarities between international trade and at the outset, it is must be understood that broadly both the types are same in aspect, such as specialization is the basis of both domestic as well as foreign trade. Specialization is the basis of both domestic as well as foreign trade. Both have same requestees, two parties, two commodities and determination of relative price. ये देखिए, स्पेशलाइजेशन इज द बेसिस ऑफ बोथ. डोमेस्टिक, अगर कोई जगह या कोई शख्स स्पेशलाइज्ड है, ये डोमेस्टिक में भी उसको फायदा देगा और जिसे कहे इंटरनेशनल ट्रेड में भी फायदा तो मिलेगा ही ना. उसके बाद बोथ हैव सेम रिक्वायरमेंट, यानी दो पार्टीज होंगी, दो कमोडिटीज होंगी, जिसका ये दो कमोडिटीज इसलिए कहा गया है. जस्ट अ सेकेंड, आई एम स्टॉपिंग, जस्ट अ सेकेंड.